جب میں نے آج آنے کے لیے پوچھا کہ آج کیا چاہتے ہیں ہولی اسپرٹ کہ میں آپ کے لوگوں کو پریچ کروں، تو ایک ٹیسٹمنی شیئر کرنے کے لیے اور یہ وچن آپ کے لیے کہا کہ میرے لوگوں سے کہو وہ کہنا شروع کریں کہ میں ان کے لیے کیا ہوں، تاکہ 2025 میں جو وہ کہنا شروع کریں گے وہ مجھے اسی روپ میں اپنے ساتھ دیکھیں۔ اب کیا آج سے کیا کہو گے؟ کہتا میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہ میرے لیے کیا ہے، جو وہ آپ کے لیے ہے۔ آج کے بعد اسے کہنا شروع کر دو کہ تو میرے لیے میرے مصیبت میں میرا مددگار۔ کہتے تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک آمد و رفت۔ آپ پیدل بھی جاتے ہیں، پیدل چلتے لوگوں کی موت ہوتی، سنی ہے نا؟ پیدل چلتے گلا کٹ گیا، پیدل چلتے اٹس مین صرف بائک پہ نہیں، گھر سے نکلتے ہو تو بولا کرو، گھر سے نکلنے سے پہلے بولو صبح ہی خداوند میرا خدا میرا باپ میری آمد و رفت میں ہمیشہ تک میرے ساتھ۔ ہاللیلویا۔ مجھے فیلنگ نہیں آ رہی، ایک ہفتے سے میں بہت اداس ہوں، مجھے اکیلا پن محسوس ہو رہا ہے، اس پہ مت جاؤ۔ وہ اکیلا پن، وہ تنہائی، وہ فیلنگ شیطان دے رہا ہے، وہ آپ کے 5 سینسز آپ کو تنگ کرے، شیطان ان کے ذریعے آپ کے اوپر اوور کم کرنا چاہ رہا ہے، لیکن آپ اپنی چھٹی حصے چلو، فیتھ سے چلو۔ ہاللیلویا۔ تو فیلنگ کے چکروں میں کبھی نہیں، آج گرم محسوس ہو رہا ہے، آج مجھے چرچ میں مجھے کچھ فیل ہوا ہے، آج تو مجھے چرچ میں کچھ فیل ہی نہیں ہوا، اس کا مطلب آپ جیسس کرائسٹ کی چھٹی پہ تھے نہیں، آپ کو فیل نہیں ہوا۔ وہ آپ کو سکھانا چاہتا ہے کہ میرے بچے میں فیلنگ کے ساتھ تجھے نہیں، میں تجھے فیتھ سے چلانا چاہتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ زبور 91 اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔ کیا لکھا ہے؟ میں خداوند کے بارے میں ایمان رکھوں گا، تھنکنگ اب سوچوں گا، کیا کروں گا؟ آواز نہیں آئی۔ میں خداوند کے بارے میں ڈکلیئر کروں گا، میں خداوند کے بارے میں کہوں گا کہ وہ میری پناہ ہے، وہ میرا گڑھ ہے۔ مصر کے اندر جو فرعون نے بہت بڑے بڑے گڑھ بنائے تھے، ایسے قلعے، ایسے گڑھ کہ دوسرے جو طاقتور فوجیں تھی وہ کبھی بھی اس پر اٹیک نہیں کر سکتی تھی۔ ہاللیلویا۔ کہتا وہ میرا گڑھ ہے کہ دشمن کبھی بھی مجھ پر حملہ نہیں کر سکتا۔ میں خداوند کے بارے میں یہ کہوں گا، ڈکلیئر کروں گا، اعلان کروں گا، گھوشنا کروں گا۔ کب؟ بیماری میں بھی، خوشی میں بھی، مصیبت میں بھی، جب شیطان ستائے گا تبھی بھی، جب مجھے ہر طرف سے فیور ملے گا تبھی بھی، جب حالات میرے خلاف ہو جائیں گے، سب میرے خلاف ہو تبھی بھی میں کہوں گا۔ ہاللیلویا۔ کہنا بہت ضروری ہے۔ آپ اسی لیے بائبل کہتی ہے کہ منہ سے بولو۔ کہتے ہیں میں خدا کے بارے میں سوچ نہیں رکھوں گا، یہ مجھے جو یقین ہے مجھ سے بولوں گا، میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہ میری پناہ ہے، سکیور کرنے والا ہے وہ میرا۔ آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ ہاللیلویا۔ کہ وہ میرا ریفیوجی ہے، وہ مجھے سکیور کرنے والا ہے، وہ میرا گڑھ ہے، وہ میرا کیا ہے؟ میرے چھپنے کی جگہ۔ 18 زبور کو بھی پڑھے تو اس میں بھی لکھا ہے، اے خدا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تیرے بارے میں کہوں گا تو میرا چھڑانے والا ہے، تو میرا بچانے والا ہے، تو میری پناہ ہے۔ ہاللیلویا۔ تو میرا ریفیوجی، مجھے سکیور کرنے والا ہے، مجھے پالنے والا ہے۔ کہو، ہر روز صبح اٹھ کے کہو کہ آج کا دن یہوہ نے بنایا ہے اور یہ دن میرے شادمان ہونے کے لیے۔ ہاللیلویا۔ ہر صبح کہو کہ آج کا دن میرے باپ نے میرے لیے بنایا ہے، ہر ایک اچھی بخشش میرے باپ نے میرے لیے بنائی۔ میں اپنے خداوند کے بارے میں کہوں گا کہ وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ میرا خدا ہے۔ میں اپنے خدا کے بارے میں کہوں گا وہ میرا باپ ہے۔ ہاللیلویا۔ اس نے مجھے اختیار دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ جب بھی شیطان دکھائے اور بتائے کہ دیکھ یہ نہیں ہوا، تیرے لیے یہ نہیں ہوا، بولو میں کہوں گا کہ وہ میرے ٹیڑھے راستوں کو سیدھا کرتا ہے۔ میں اپنے خدا کے بارے میں کہوں گا کہ بائبل کہتی ہے اس نے مجھے وہی روح دیا ہے جو اس نے یسوع مسیح کو دیا۔ ہاللیلویا۔ میرے یسوع مسیح نے، میرے خداوند نے مجھ سے کہا ہے کہ اس نے مجھے ویسے اس دھرتی کے اوپر بھیجا اور اپوائنٹ کیا ہے، مجھے اسائنمنٹ دیا ہے جیسے اس کو خود ملا پتا سے، باپ سے۔ ہاللیلویا۔ کہو، آج سے کہنا شروع کرو۔ جب میں نے آج آنے کے لیے پوچھا کہ آج کیا چاہتے ہیں ہولی اسپرٹ کہ میں آپ کے لوگوں کو پریچ کروں، تو ایک ٹیسٹمنی شیئر کرنے کے لیے اور یہ وچن آپ کے لیے کہا کہ میرے لوگوں سے کہو وہ کہنا شروع کریں کہ میں ان کے لیے کیا ہوں،
ताकि 2025 में जो वो कहना शुरू करेंगे वो मुझे उसी रूप में अपने साथ देखें। हालेलुया। तो कहो अपने खुदा के बारे में, वो आपके लिए क्या है, वो आपकी पनाह है, वो आपका गढ़ है, वो आपका बाप है, कभी ना छोड़ने वाला साथी। हालेलुया। कहना शुरू करो कि वो आपके लिए क्या है। फेथ रखो। मेरे बाप के कलाम में ये लिखा है कि मेरा हाथ छोटा नहीं कि मैं तुझे बचा ना सकूं। क्या कोई खाई इतनी गहरी है कि वहां उसका हाथ ना जाए और आपको निकाल ना सके? बोलो हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। हालेलुया। और कहते हैं क्या तेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि मैं उसे सुन ना सकूं? मेरे कान, बाइबल कहती है उसके कान हमेशा अपने बच्चों की, रास्तकारों की दुआ पर लगे रहते हैं। हालेलुया। वो आपकी प्रेयर्स को सुन रहे, राइट टाइम पर आंसर देगा। और इस चीज की जल्दबाजी से बाहर अपने आप को फ्री करो कि मैं बहुत कुछ कहता हूँ, मैंने ये प्रेयर की हुआ नहीं। आपको वो तैयार कर रहा है, आपके शब्दों में सामर्थ आ रही है। वो टाइम आएगा, आप जो कहेंगे वो उसी वक्त होगा। लेकिन आपको अभी, क्योंकि बच्चे हैं स्पिरिट में, तो कई बार बहुत सी गलत बातें कह देते हैं। अगर वो भी राइट टाइम पे पूरी हो जाए उसी वक्त, तो बहुत नुकसान होगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठा के कहो अपने खुदावन के बारे में वो क्या है आपके लिए। फिर मैं वो टेस्टिमनी आपको बताऊंगी। आपके साथ अपने हाथों को उठा के शाउट करके बोलो, डिक्लेरेशन करो खुदावन की इस प्रेजेंस में वो आपके लिए क्या है। बोलो वो मेरी पनाह है, वो मेरे छुपने की जगह है, वो मेरा खुदा है, वो मेरा बाप है। हालेलुया। मैं उसका बच्चा हूँ। हालेलुया। मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ। वो मुझे कभी नहीं छोड़ता, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं उसके लिए जलील अल कदर हूँ, मैं उसके लिए बहुत खास हूँ। हालेलुया। यशायाह की किताब में लिखा है तू मेरे लिए जलील अल कदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब्बा फादर, हम थैंक्स करते हैं। हालेलुया। ए अब्बा, ए बाप। जीसस क्राइस्ट ने प्रेयर की इस तरह, ए अब्बा, ए बाप। तो इसीलिए उसने कहा जब तुम भी प्रेयर करो, दूर दूर मत रहो, सिर्फ उसे ए खुदा मत कहो, उसे बाप कहो। हालेलुया। ए खुदा कहने वाले उस वक्त बड़े हो जाएंगे। ए खुदावन हमने तो ये क्या है खुदावन हमने, लेकिन बच्चे जो उसके फर्जंद हैं, जो औलाद है, जो उसके बेटे बेटियां, वो दहनी तरफ होंगी। हालेलुया। उन्हें ये कंप्लेन ना करनी पड़ेगी क्या बाप हमने तो तेरे नाम से, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो वहां ये नहीं लिखा है बाप हमने तो तेरे नाम से बदरूहें निकाली, लिखा है ए खुदावन हमने तो तेरे नाम से बदरूहें निकाली। हालेलुया। इस मुकाशफे को अपने अंदर रिसीव कर लो कि वो आपका खुदा है, वो बादशाह है, लेकिन सबसे बड़ा जो मसीह यीशु के वसीले आप पर फजल हुआ, आप वही खुदा, वही कायनात का बादशाह आपका बाप भी है। हालेलुया। ये सबसे बड़ा मार्वलेस प्रिविलेज है कलीसिया के लिए, मसीह यीशु की दुल्हन के लिए, कि उसने अपने अब्बा को हमें अब्बा कहने का हक दिया है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि हमने उसकी मामूरी में से फजल पर फजल पाया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अब क्या आज से क्या कहोगे? कहता मैं खुदावन के बारे में, मैं खुदावन के बारे में कहूंगा वो मेरे लिए क्या है, जो वो आपके लिए है। आज के बाद उसे कहना शुरू कर दो कि तू मेरे लिए, मेरे मुसीबत में मेरा मददगार है। हालेलुया। तू मेरे लिए हर वक्त मदद तैयार रखता है, जहां मैं चाहता हूं तू मेरे लिए पहले से मौजूद होता है। हालेलुया। तू मेरी आमदोरफ्त में मेरे साथ है, कभी नहीं छोड़ता, रास्तों में वो नहीं छोड़ता। उसने कहा अंदर आते वक्त तू मुबारक है, तो अंदर नहीं छोड़ता, बाहर जाते वक्त भी कहता है मुबारक है, इसमें बाहर भी नहीं छोड़ रहा। कहते तेरी आमदोरफ्त में अब से हमेशा तक आमदोरफ्त। आप पैदल भी जाते हैं, पैदल चलते लोगों की मौत होती, सुनी है ना? पैदल चलते गला कट गया, पैदल चलते, इट्स मीन सिर्फ बाइक पे नहीं, घर से निकलते हो तो बोला करो, घर से निकलने से पहले बोलो सुबह ही खुदावन मेरा खुदा, मेरा बाप मेरी आमदोरफ्त में हमेशा तक मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जोर से तारीफ करो। एक टेस्टमनी खुदावन के एक खादिम जो खुदावन में सो गए हैं, राइनहुल्ड बॉन्के उनका नाम है। उनकी एक बहुत टेस्टमनी जिसने मुझे बहुत फेथ में और स्ट्रॉन्ग किया, बाप के लिए ऑनर और प्यार को और बढ़ाया और आपसे शेयर करने के लिए कहा। वो अफ्रीका के एक शहर में एक जगह पर प्रीच करने के लिए, उनका बहुत बड़ा क्रूसेड था। खुदा ने उन्हें की कॉलिंग रखी थी अफ्रीका के लिए, तो अफ्रीका में उनका बहुत बड़ा क्रूसेड था। और वहां पर वो जब गए, जिस खादिम ने उन्हें बुलाया था,
क्रूसेड से एक दिन पहले वो उन्हें बाहर लेकर गए और उन्होंने कहा कि रॉनेल्ड बॉन्के ने पूछा कि ये क्या, उन्होंने कहा ये जेल है बहुत बड़ी और मैं अक्सर यहाँ पर प्रीच करने के लिए आता हूँ, बहुत से लोगों ने यहाँ पर उनकी लाइफ सेव हुई है, क्या आप प्रीच करना चाहोगे यहाँ पर? उन्होंने कहा हाँ मैं जरूर चाहूंगा कि मैं प्रीच करूँ यहाँ। उनको अंदर लेके गए तो खुदावन के खादिम कहते हैं कि मैं वहां पर बहुत सारे लोग जो है वो मोटी मोटी जंजीरों से, बहुत तगड़े जवान जो है उन्हें बांधा हुआ था जंजीरों के साथ, तकरीबन 50 के करीब थे। और मैं जब वहां पर गया तो वो सब बहुत स्लो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। थोड़ी देर बाद उनमें से एक लीडर था और उसने गीत शुरू किया और वो बजाकर गीत शुरू करने लगे। कहते हैं अफ्रीका के लोगों की ये खूबी है कि उनके पास वो कभी भी रोते नहीं है कि हाय हमारे पास तो ये नहीं बजाने के लिए, हमारे तो वो जो उनके पास है वो उससे खुदा को ऑनर देते हैं, चाहे वो थोड़ा है ज्यादा है, साज नहीं है तो कुछ जो पास होता है उसी को बजा के नाच के उसकी हमद करते। तो अपनी जंजीरों को बजाकर गीत गाने लगे। और जो लीडर था कहते होली स्पिरिट मुझे उसके लिए कहने लगा कि ये शख्स को इसको पास बुलाओ। जब पास बुलाया उसका नाम पूछा, उसका नाम रिचर्ड था। कहते कहा कि होली स्पिरिट कह रहा है कि तू आजाद किया जाएगा और मेरी खिदमत करेगा। कहते मैंने जब मुझे होली स्पिरिट ने मुझे ये कहा, इससे पहले कि मैं उसे बुलाता और अपने पास बुलाकर ये कहता, मैंने कहा ये तो बहुत खतरनाक बात है, मैं इसे कहूँ कैसे कहूँ? तो मेहरबानी से मुझे फिर एक बार ये मुझसे बात करें होली स्पिरिट। दोबारा उन्होंने कहा कि उसे बुलाकर कह दे कि खुदावंद का रूह कहता है तू आजाद किया जाएगा, इस जेल से छूट जाएगा और मेरी मुनादी किया करेगा। उन्होंने पास बुलाया, उसका नाम पूछा, सबको सब चले गए, उसको बुलाया और उसे ये बात कही कि रिचर्ड खुदावंद कहता है कि तू आजाद होगा और मेरी मुनादी करेगा। और उसने चुप करके मुंह जो है वो दीवार की तरफ कर लिया और दीवार की तरफ करके वो उस दरख्त को देखने लगा जहां पर हर महीने में एक बार जो फांसी, क्योंकि ये वो कहती थे जो मौत का इंतजार कर रहे थे, फांसी के लिए इनकी कॉल हुई भी थी, ये सब एक एक करके इनको फांसी दी जानी थी और वहां पर वो अपना वेट कर रहे थे मौत का सिर्फ। उसने उस दरख्त की तरफ देखा, उसने कहा हर महीने में एक बार वो दलाल आता है और वो इस रस्से से जो है वो गले में बांध कर खींचता है दूसरी तरफ से, और जब वो बंदा मर जाता है तो उसे तब छोड़ता है, उसके बाद उसके हाथों और पांव को काट के जंजीरें निकाल देते। और इस तरह से हम जो है बारी कहते हैं 3 बार मेरी बारी आई और उसने यूं हाफ कर कहा हाय मैं बहुत थक गया हूं, अभी बात नहीं। 3 दफा इस तरह से मैं बच गया हूं। कहते हैं रूहुल कुदुस ने तुझे बचा के रखा है, मैं तुझसे ये कह रहा हूं कि तू यहाँ से आजाद किया जाएगा और खुदावंद कहता है तू मेरी मुनादी करेगा। उसने कहता है कुछ ना कहा, वो चुप रहा और उसके बाद हम चले गए वहां से। और फिर जो है मैं जब फिर गया वहां पर तो मैंने जाकर उस खादिम से जिसने मुझे इनवाइट किया उससे मैंने कहा कि इस जेल का जो हेड है मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और कहते हैं जब मैंने कहा तो मैंने कहा वो तो कहीं बाहर गया, उसकी बीवी से मिल सकते हैं आप। कहते मैंने उसकी बीवी को जाकर कहा कि मैं खुदावंद का एक मुनाद हूँ, प्रीचिंग करता हूँ और खुदा का रूह मुझसे कह रहा है कि आपकी जेल में जो एक बंदा रिचर्ड नाम का वो आजाद किया जाएगा और खुदावंद जो है उसे इस्तेमाल करेगा। कहते उसने कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी सुनने में ऐसा नहीं हुआ और ना ही ऐसा हो सकता है, और मैंने मेरे शौहर से भी मुझे मालूम है, मैं उसके साथ हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो कहते फिर उसने सारे नौकरों को बाहर भेज के मुझे कहती हाँ एक सूरत में ऐसे हो सकता है कि अगर तुम मेरे सारे बच्चों को जो है वो अमेरिका ले जाओ पढ़ाने के लिए तो मैं ऐसा कर सकती। उसने कहा कि आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं रिश्वत नहीं ले सकता, मैं खुदा का खादिम हूँ। जो उसने मुझे कहा मैंने कह दिया। कहता वो गुस्से से जब जाने लगी तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो फिर मैंने कहा खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि रिचर्ड आजाद किया जाएगा और वो मेरी मुनादी करेगा। कहते उसके बाद में वहां पर क्रूसेड बहुत जबरदस्त रहा, बड़े काम हुए, मैं वापस चला गया। कुछ ही महीनों बाद मुझे कॉल आई कि रिचर्ड आजाद कर दिया गया है और वो सेव हो चुका है, वो खुदावंद के काम करे, उसे सेमिनरी करनी है। कहते मैंने कहा उसको सेमिनरी डालो, उसकी फीस मैं दूंगा। हालेलुया। उसने 3 साल की सेमिनरी की, वो प्रीच करने लगा। कहते कुछ सालों के बाद जब मैं वहां पर फिर बड़ा एक क्रूसेड हुआ और मैं जब वहां पर गया तो वहां सामने एक अफ्रीकन पास्टर था। कहते मुझे देखते ही वो आया और आकर मेरे घुटनों पर अपने पाँव
मेरे आके जूते उसने चूमे, बिल्कुल झुक गया, मुझे लिपट गया। और जब कहते हैं मैंने उसको पकड़ा कि आप कौन है, मैं नहीं जानता आपको। और जब मैंने उसे ऊपर उठाया, उसकी आंखों में देखा, तो वो रिचर्ड था। हालेलुया, हालेलुया। ये टेस्टिमनी बताने का, जहां से इम्पॉसिबल है। क्या आपका केस इतना इम्पॉसिबल है? चेक करो अपने आप। क्या उस रिचर्ड की तरह आपकी उम्मीद जा चुकी है? आपका केस इतना डिफिकल्ट बन चुका है कि कभी ऐसा नहीं हुआ? तो याद रखो कि खुदावंद का रूह आपको वहां से निकालने जा रहा है। आप ओवरकम करने जा रहे हैं। हालेलुया। वो आपको निकालेगा, अपनी सेवा के लिए, अपने कामों के लिए यूज करेगा, अपनी महिमा के लिए आप उसका प्रचार करेंगे, आप उसके गवाह बनेंगे। हालेलुया। वहां से जहां इम्पॉसिबल था। और देखो कि कहते मैं खुद वरी कर रहा था इस बात के लिए, मुझे फिक्र हो रही थी कैसा हुआ, एक इतने खतरनाक कैदी को मैं कैसे ये मुनादी दूं कि तू यहाँ से आजाद हो जाएगा। फिर जिन्होंने उसे रखे उनसे बात कर रहा है, दलेरी दे रहे, इसे कहते हैं रियल प्रोफेसी। हालेलुया। उस शख्स ने की, खुदा के खादिम ने, और वहां से वो निकला, और वहां से जहां से कोई नहीं, देखो 3 बार उसकी बारी आई और वो मारने वाला थक जाता था। हालेलुया। इसीलिए शैतान हार जाएगा। मैं आपको प्रोफेटिकली बोल रही हूँ, वो आपके ऊपर वार करते करते, जादू टोना करते करते वो थक जाएगा, हार जाएगा, सदा के लिए नाकाम होगा यीशु मसीह के नाम में। वो आपको ऊंचा करेगा, ब्लेस करेगा, ये उसके कलाम का वादा है। हालेलुया। वो ऐसा बाप नहीं है जिसने आपको गोद लिया, ले पाले को फर्जंद बनाया और अब छोड़ दे। वो उसने कहा मैं कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। कभी ना मतलब का कभी ना। हालेलुया। ऐसा नहीं कि जब आपको फील नहीं हो रहा तो उसने छोड़ दिया। मुझे फीलिंग नहीं आ रही, 1 हफ्ते से मैं बहुत उदास हूँ, मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है, उस पे मत जाओ। वो अकेलापन, वो तन्हाई, वो फीलिंग शैतान दे रहा है। वो आपके 5 सेंसेस आपको तंग करे, शैतान उनके जरिए आपके ऊपर ओवरकम करना चाह रहा है, लेकिन आप अपनी छठी हिस्से चलो, फेथ से चलो। हालेलुया। तो फीलिंग के चक्करों में कभी नहीं। आज गर्म महसूस हो रहा है, आज मुझे चर्च में मुझे कुछ फील हुआ, आज तो मुझे चर्च में कुछ फील ही नहीं हुआ, इसका मतलब आप जीसस क्राइस्ट के छुट्टी पे थे। नहीं, आपको फील नहीं हुआ। वो आपको सिखाना चाहता है कि मेरे बच्चे, मैं फीलिंग के साथ तुझे नहीं, मैं तुझे फेथ से चलाना चाहता हूँ। हालेलुया। फेथ वो आपके साथ है तो है, कमी आए, घटी आए, हालात कैसे भी हो, गलती हो गई माफी मांगो, फिर से चलो, रुकने वाला काम नहीं। हालेलुया। और छोड़ दिया उसने, त्याग दिया, ऐसा भी नहीं, क्योंकि वो अपने वचन से बाहर नहीं जाता। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा। जब पतरस ने इनकार कर दिया तो उसे कहलवाया, क्या तू मुझसे प्यार करता है? तब उसने कहा हाँ खुदावंद, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। तो कहो, जहां जहां गलत इकरार किया है उसको करेक्ट करो पतरस की तरह, फिर से उसका अंगीकार करो। अगर कहा है कि नहीं खुदा मेरी नहीं सुन, बहुत से पास्टर जी दुआ करो, जब कहो ना आप भी करें, नहीं खुदा ताड़ी ज्यादा सुन लो, आपकी भी वो उतनी ही सुनता है। फेथ की बात, आप फेथ नहीं करते, आप जल्दी क्विट कर देते हैं। पास्टर साहब की ड्यूटी है, उसको क्विट नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। आप क्विट कर देते हैं, क्विट नहीं करना, फेथ बना के रखना और कहते जाना है। कहते मैं कहूंगा, कहते ही जाने, कहते जाओ कि निजात क्या है, खुदावंद से है। हालेलुया। तो आज के बाद आपने कहना है, जहां जहां गलत अंगीकार किया है, पतरस की तरह इनकार कर दिया उसके वचन का, उसके साथ होने का। वो साथ है पर आप कह रहे हैं कि मुझे फील नहीं हो रहा खुदावंद मेरे साथ, आपने इनकार कर दिया। तो फेथ के साथ अंगीकार करो, इकरार करो कि वो मेरे साथ है, वो मेरा खुदा है, उस पर मेरा तवक्कल है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो ना सिर्फ मेरा खुदा बल्कि मेरा बाप भी है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं इसी फेथ के साथ, इसी तरह से अपने हाथों को, कि आज के बाद मैं फीलिंग के साथ नहीं, मैं फेथ से चलूंगा। हालेलुया।